السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کا تقریب سے خطاب ملاحظہ کیجیے۔ ترقی کی تیز ترین رفتار کے حساب سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت پاکستان اس خطے میں سب سے آگے تھا، سب سے آگے تھا۔ آج اس خطے میں سب سے پیچھے ہے پاکستان۔ اس وقت مزدور خوشحال ہو رہے تھے، آج مزدور اور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ بجلی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی تو کیا مزدور روزگار ملے گا مزدور کو؟ پاکستان کے اندر نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ تیل ہے۔ اس حکومت کے آنے کے بعد یہ چیزیں ایسے ختم ہوتی چلی گئی کہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یاد ہوگا آپ سب کو، میڈیا کو بھی یاد ہوگا، زرداری صاحب کو بھی، گیلانی صاحب کو بھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو آج 2008 ہے، انتخابات ہوئے ہیں، ملک میں لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ کئی گھنٹے بجلی بند رہتی ہے۔ اس مشرف کو، جس کو گارڈ آف آنر آپ نے دیا ہے، بلاؤ اس کو کٹہرے پر، قومی اسمبلی کے کٹہرے میں کھڑا کرو اور پوچھو، مشرف تم بتاؤ کہ پاکستان کو تم نے اتنی بڑی یہ بجلی جو لوڈ شیڈنگ کی جو لعنت تم نے اپنا یہاں پہ دی ہے، یہ کیا تمہارا ذمہ داری نہیں تھی کہ تم پاکستان کے اندر اس کا مناسب بندوبست کرتے؟ انہوں نے بالکل، ان کی جرت نہیں تھی کہ اس کو بلاتے۔ کہ دیکھو تم جواب دو اس قوم کو۔ اور ایک زمانہ وہ تھا جو 1990s کی بات کر رہا ہوں، 1990 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت نہ صرف پاکستان میں بجلی وافر تھی بلکہ ہندوستان کو بجلی ایکسپورٹ کی جانے کی جو ہماری پالیسی، اس پہ غور کیا جا رہا تھا۔ کتنا فرق تھا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں۔ ترقی کی رفتار تیز ترین تھی، بجلی تھی، گیس تھی، پانی تھا، اور پھر پاکستان کے اندر زراعت ترقی کر رہی ہے، صنعت ترقی کر رہی ہے، صنعت کا پہیہ بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ یہ بیٹھے ہیں خورشید احمد صاحب، ان سے پوچھیں کہ کیا ایسا تھا یا نہیں؟ اور ہمارے محترم بشیر بختیار صاحب بھی، جب بھی میں ان کو ملتا مجھے گلے کے ساتھ لگاتے اور میرا ماتھا چومتے، مجھے پیار کرتے۔ تو بھائی یہ کام کرنے سے، خدمت کرنے سے یہ پیار ملتا ہے، یہ مفت پیار کبھی کسی کو نہیں ملا کرتا۔ ابھی میں مل رہا تھا یہاں لوگوں سے جن کو گھر ملے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی باقی لوگوں کو بھی اس کی چابیاں ملیں گی۔ 1200 غالباً 1296 یا 1296 گھر ہیں جو یہاں پہ مل رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کو میری طرف سے آپ بھی مل کر مبارکباد پیش کریں۔ بڑا اچھا کام کیا ہے، بہت عمدہ کام ہے یہ۔ ان غریبوں کی دعائیں لینا دنیا میں بھی جنت کمانے والی بات ہے اور آخرت میں بھی جنت کمانے والی بات ہے۔ میرے والد بھی ایک مزدور تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، ہاتھ سے۔ وہ کوئی انگریزوں سے انعام پانے والے جاگیردار نہیں تھے، انگریزوں سے انعام میں جاگیریں حاصل نہیں کی انہوں نے۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے جو ہے وہ بنائی تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے زبانی ہمیں باتیں بتاتے تھے، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، کس طرح سے اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرتے تھے، اور پھر کتنے سال انہوں نے کام کیا، پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیکٹری لگانے کی طاقت عطا فرمائی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے محنت کی۔ 10,000 کے لگ بھگ ہماری وہاں پہ ان کی فیکٹری میں لوگ کام کرتے تھے، اور پھر بھٹو نے فیکٹری اپنے کنٹرول میں لے لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل فارغ کر کے بٹھا دیا گیا۔
अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, मैं उनसे पूछता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी मेरे साथ खड़े थे, खुर्शीद अहमद साहब भी खड़े थे, हमने उनसे पूछा है कि क्या तनख्वाह है आपकी, जिनको भी हमने चाबियाँ दी हैं या मालिकाना हुक दिए हैं। कोई कहता है 7,000 रुपया, किसी ने कहा 8,000 रुपया, किसी ने कहा 7,500 रुपया, किसी ने कहा 12,000 रुपया। मैं तो कहता हूँ आज 20,000 भी कमाने वाले का गुजारा नहीं होता, क्योंकि 20,000 कमाने वाले का गुजारा होता है? या सच बताना, सच। जो समझते नहीं होता जरा हाथ तो खड़ा करें भाई, हाथ नीचे करें, जरा हाथ नीचे करें। जो समझते कि 20,000 कमाने वाले का गुजारा होता है वो हाथ खड़ा करें। सच सच बोलना, कोई हाथ नहीं खड़ा करूंगा। मैं सच बिल्कुल मानता हूं, दुरुस्त बात है ये। 20,000 रुपया कमाने वाला शख्स जो है वो घर का किराया देगा, 2 वक्त की रोटी खाएगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, बीमारी में इलाज मुआवजे के लिए पैसे अपनी जेब से अदा करेगा, और फिर यहाँ पर तालीम दिलवाएगा अपने बच्चों को। क्या वो ये सब काम कर सकता है? अपने आने जाने का किराया दे सकता है? नहीं दे सकता। उनको बच्चों को कपड़े दे सकता है? ये देखो ना, रोटी कपड़ा मकान कहाँ इनका नारा है। ना आज रोटी इनको मिलती है, ना कपड़ा ये पहन सकते हैं, और ना इनके पास मकान है। तो ये सब बातें जो है, ये भाई ये बातें सियासत में वोट लेने के लिए हासिल ना करो, वोट हासिल करने के लिए ना करो ये बातें। बात सच करो, आवाम के साथ सच करो। जैसे अभी शहबाज शरीफ ने कहा कि हम 7,000 वाले 7,000 से बढ़ा के 9,000 कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि 9 नहीं बल्कि 20 होना चाहिए। लेकिन 9 कर देना भी बड़ी बात है, 9 कर देना भी बड़ी बात है। और मैंने शहबाज साहब से कहा, मैंने कहा कि तमाम प्राइवेट जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बुलाएं, उनको बिठाएं मेज पर, उनको कहें कि हुकूमत ने ये फैसला किया है, अब आप इस फैसले पर अमल करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और उनको जिम्मेदारी अदा करने के लिए उनसे बात करें कि वो अब इसमें कोई जो है वो कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है वो 7,000 रुपये कमाने वाले जो है वो तो भाई मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ बड़ा इन लोगों के साथ बड़ा जुल्म होता है। आज यानी कि रोज़ बरोज़ महंगाई जो उसमें कितने फीसद जो है इजाफा होता चला जाता है। आज रेट कुछ है, कल रेट कुछ है, परसों रेट कुछ है। ये बेचारे वहाँ जाते हैं, इनकी घर वाले जाते हैं, बहनें जाती हैं, माएँ जाती हैं, जब सब्जियों का रेट पूछती हैं तो निढार होने लगती हैं कि कल क्या रेट था और आज कितना बढ़ गया है। तो ऐसे हालात में 7,000 रुपये क्या करेंगे, 10,000 भी क्या करेंगे। लेकिन हमने जो है वो अपने हिसाब के मुताबिक चलना है। और मैं समझता हूँ कि ये कम अज़ कम बहुत अच्छी बात है कि आज 1 मई है और शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में कहा कि 7,000 से हम बढ़ा के 9,000 करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत बड़ा कदम है, और मैं शहबाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा जब भी दौर आया है, 1 मिनट, अल्लाह के फजल से हमने हमेशा गरीबों का ख्याल किया है। एक ज़माना था जब मैंने यहाँ पर, जब मैं वज़ीर आला था पंजाब का, 3 मरला स्कीम का इजरा मैंने किया था अल्लाह के फजल से। फिर जनाब कॉलोनीज हमने बनाई पाकिस्तान में, और फिर मेरा घर स्कीम हमने पिछले दौर में शुरू किया। जो पिछली बारी में जो 2 बारियां ली है ना हमने, 2-2 साल की, 2.5 साल की, ये बड़ा हमें कहा जाता है जनाब, ये खराज तहसीन पेश किया जाता है कि 2-2 बारियां ले गए। 2-2 बारियां भी देखें 2-2 साल की। अगर पूरे 5-5 साल की बारी दी होती, आज पाकिस्तान की शक्ल ही कुछ मुख्तलिफ होती। मैं ये अल्लाह के फजल करम से ये यकीन से बात करता हूँ, आज पाकिस्तान के लोग बड़े खुशहाल होते। जिस स्पीड के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, जो तरक्की के काम पाकिस्तान में हो रहे थे,
भाई आज तो पाकिस्तान की तस्वीर कुछ और होती। मुझे तो बड़ा दुख है, बहुत तकलीफ होती है, मैं बड़े बोझल दिल के साथ आज जो मुझे आजकल में ये काम करना पड़ रहा है, ये जो फैसले करने पड़ रहे हैं हमारी पार्टी को, बहुत तकलीफ दे फैसले हैं ये। अगर हम एहतजाज की बात करते हैं और एहतजाज मैं समझता हूँ कि इस बात पे एहतजाज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, उसकी हुक्मदूली करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं। उस सुप्रीम कोर्ट को तो इन्होंने बहाल किया था जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी कौम है, उन्होंने लॉन्ग मार्च करके उसको बहाल किया। उस सुप्रीम कोर्ट की तजलील अब इनके हाथों से हम बर्दाश्त करें? ये हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर हमने ऐसा होने दिया तो पाकिस्तान इंतशार की तरफ चला जाएगा, एनआरसी की तरफ चला जाएगा, तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बनेगी। यहाँ फिर इंसान नहीं रह सकेंगे, शायद हैवान भी नहीं यहाँ रह सकें। ये हाल, ये उस तरह का पाकिस्तान करना चाहते हैं। भाई ये तुम्हारे अकेले का पाकिस्तान नहीं है। जरदारी साहब, तुम अकेले इस पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। गिलानी साहब, ये तुम्हारे अकेले का पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान 18 करोड़ अवाम का है जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस मुल्क को बनाया और तामीर किया है। हमें इतनी आसानी से तुम्हें अपने इदारे बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकते। ये तमाशा बना लिया है। हम और बहुत कुछ बर्दाश्त करते रहे इन 4 सालों में। इस मीडिया के ताने भी बर्दाश्त करते रहे जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। सबके नहीं, सबने तो ताने दिए भी नहीं है, लेकिन कईयों ने दिए हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी मिले हुए हैं। आप फैसला करो यार। आप मेरे सामने, मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मैं मिला हुआ हूँ? इनको बताओ मैं मिला हुआ हूँ इनसे? और मैं तो पाकिस्तान के लिए मैंने खंदा पेशानी के साथ ये वक्त बर्दाश्त किया है, पाकिस्तान की खातिर, कि पाकिस्तान दुनिया में मजाक ना बन जाए। पाकिस्तान दुनिया के अंदर सामने एक लाफिंग स्टॉक ना बने। पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक जो है वो उसका इमेज सही रहे। अभी देखिए, हमने हक पे बात की है। हमने बात की है कि हम इस मुल्क के अंदर आइन का एहतराम करेंगे, कानून का एहतराम करेंगे, रूल ऑफ लॉ लेकर आएंगे, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट को किसी के हाथों जलील नहीं होने देंगे। तो कल शाम को कुछ लोग चैनलों पे बात कर रहे थे, टीवी पे बात कर रहे थे, मीडिया पे बात कर रहे थे। ये देखें कि फिर वही सन 80 और सन 90 की दहाई में ये लोग वापस जा रहे हैं। खुदा का खौफ करो भाई ऐसी बात कहने वालों। और हम तो पाकिस्तान की बका और सलामती की जंग लड़ रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नस्लों के लिए ये जंग लड़ रहे हैं कि वो यहाँ पाकिस्तान में जो आने वाली हमारी जनरेशंस हैं, जो नस्लें हैं, वो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके इस मुल्क के अंदर। हम तो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उनके बेहतरीन और रोशन मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम को अब मजबूत करना चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल खुशहाली की जंग लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी को मजबूत करने की जंग लड़ रहे हैं। तो हमें ये ना कहा जाए, ये ना कही, मुझे नहीं कह रहे थे वो, लेकिन वो ये कह रहे थे कि 80 और 90 की दहाई की तरफ हम वापस जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए जो भी मैं समझता हूँ कि जदोजहद करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो सुरखरू होगा। जो भी मैदान में निकलेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए इंशाअल्लाह मैदान में निकलेगा, और जो भी बाकी इदारों के लिए और आइन और कानून के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए निकलेगा, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तानी उसका सर फख्र से बुलंद होगा, सुरखरू होगा, और मैं उसको सलूट करूंगा कि ये सच्चे और खरे पाकिस्तानी। आज 4 साल हो गए हैं, आज 4 साल हो गए हैं। अगर ये इन्होंने सही जानिब जो है वो सही जानिब इन्होंने काम किया होता, हमारे साथ जो मुआहदे किए थे उनको पूरा किया होता, आज तो पाकिस्तान की तकदीर बदल चुकी होती, तकदीर बदल चुकी होती। यहाँ ना कोई महंगाई का
की लानत होती, ना यहाँ पे बेरोजगारी की लानत होती, ना यहाँ पर जो है ये पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दी की लानत होती, ना पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाकी जो है वो बुराइयां होती हैं। पाकिस्तान के अंदर गरीब आज गरीब ना होता, गरीब तर ना होता, बल्कि गरीब की हालत भी आज बहुत बेहतर हो रही होती, हो चुकी होती। और मैं दिल से कहता हूँ, अगर ये अच्छा काम कर रहे होते मैं आज भी इनके साथ होता, अच्छा काम कर रहे होते मैं आज भी इनके साथ होता। अगला इलेक्शन जीतते अपनी मेरिट की बुनियाद के ऊपर, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, मैं फिर भी इनके साथ होता। मैं अपनी मैं समझता कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान का अगर एजेंडा जो आगे बढ़ता है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी और किसी बात की नहीं हो सकती। इनसे तो बड़ा मुश्किल हो गया था मनवाना हमें जब इसकी बहाली का, जब इतनी मुश्किल से वो काम करवाया हमने, वो भी लॉन्ग मार्च करके। इनसे अब ये इनको चाहिए था कि अपनी गलती से सबक सीखते हुए जो है अदलिया का एहतराम करते, और आज अदलिया का हुक्म मान रहे होते, पाकिस्तान के साथ मिलके हमारे साथ मिलके चल रहे होते। आज पाकिस्तान में यकीन करें, शहबाज शरीफ साहब ठीक कहते हैं कि लोड शेडिंग जो है वो उसकी लानत ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन उन रेंटल पावर में पाकिस्तान के अरबों रुपए ये लोग खा गए हैं, अरबों रुपए खा गए। हाजियों का पैसा नहीं छोड़ा, हाजियों का पैसा खा गए थे। रोज गंदे बंदे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कोई ना कोई रूलिंग देती है, उनको हटाते नहीं है, उनको यहाँ से निकाल के उधर लगा देते हैं, उधर से निकाल के उधर लगा देते हैं। ये तो रोज इन्होंने अपना ये काम पकड़ा हुआ है। मुझे बताएं कि कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी के बेटे का नाम आ रहा है, कभी किसी के कज़न का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम, कभी किसी के दोस्त का नाम आ रहा है। इतने हाई लेवल पे करप्शन मैंने कभी देखी नहीं जिंदगी में। आप और मैं इस बात का हमें ऐड करना चाहिए कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क को अल्लाह के फजल करम से कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के तसव्वुर के ऐन मुताबिक बनाएंगे इंशाल्लाह। और हम बनाएंगे, हमने पहले भी किया है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम ज़ुबानी कलामी बात नहीं करते। आप उठाकर देखें कि नवाज शरीफ के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने कितनी तरक्की की है और कौन कौन से काम हुए हैं। ये पूरा रिकॉर्ड आपके सामने है। वो रिकॉर्ड सामने इंशाल्लाह आइंदा मौका मिलेगा, उससे 10 गुना ज़्यादा और काम करेंगे, उससे इंशाल्लाह और ज़्यादा काम करेंगे और पाकिस्तान को एक मिसाली मुल्क बनाएंगे दुनिया में। अब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ है, बहुत उम्दा काम हुआ है और बहुत खुशी की बात है। और भी इस तरह के मंसूबे जो हैं वो लॉन्च किए जाएं, और फिर ये तो मरकज़ से सपोर्ट मिले तो फिर ये काम होते हैं। मरकज़ से अगर सपोर्ट ना मिले तो फिर ये बिजली तक भी नहीं आती, जिसका जिक्र अभी शहबाज साहब ने किया कि इन घरों के अंदर बिजली नहीं है। बिजली आनी चाहिए और बिजली आएगी इंशाल्लाह। ये लोग मजदूर जा रहे हैं, इसके अंदर इंशाल्लाह बिजली आएगी, लेकिन बिजली आ भी गई तो फ़ायदा क्या है? वो फिर भी नहीं आती, आके भी नहीं आती है, फिर चली जाती है। 10 घंटे नहीं आती, 1 घंटे के लिए आती है, 10 घंटे के लिए गायब हो जाती है। अजीब है बिजली भी भाई यार यहाँ इस मुल्क के अंदर। ये कभी किसी मुल्क का हाल हमने नहीं कभी देखा। तो शहबाज साहब बिजली आए और फिर ऐसी आए कि फिर जाए ना यहाँ से, लेकिन उसको अभी वक्त लगेगा। एक कौम ने अगर इस कौम की अक्सरियत ने अगर सही फैसला किया, आइंदा इंतखाबात में सही फैसला किया, तो इंशाल्लाह ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये मुल्क अल्लाह के फजल करम से खुशहाल होगा। ये लोग तरक्की करेंगे, इनके बच्चों के हाथों में बस्ते होंगे, स्कूल जाएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, किताबें उनके हाथों में होंगी, पढ़ेंगे लिखेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो कंप्यूटर दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, उनके हाथों में लैपटॉप भी होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ रहने वालों के बच्चों के हाथों में भी लैपटॉप आएंगे अल्लाह के फजल से। इसके बाद जनाब मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम खुर्शीद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मजदूरों की इन्होंने हमेशा खिदमत की। मुझे कहा कि मैं कभी खुर्शीद साहब आप वाकई